Hello, dear students. Welcome back to a new channel. Students, today we are going to talk about, is it feasible to blend isobutanol and diesel? Now, students, right now, when we see vehicles on the roads, they run on diesel. Okay, it's a fuel that comes from crude oil. But as we know, fossil fuels pollute our environment. It harms our air. It harms the air, and on top of it, it is becoming more expensive as oil reserves are shrinking. है ना? So basically, government worldwide worldwide is trying to look for alternative fuels. Basically, the one which is cleaner, renewable, and that can help our vehicles running, but with less damage to the planet. So our government has been experimenting with different biofuels like ethanol, which is basically made from plants such as sugarcane. But recently, there has been talk of trying something new, isobutanol. Okay, so today we are going to explore a big question. Is it possible to blend isobutanol with diesel and use it in our vehicle? And we'll dive into what isobutanol is, how it is made, and why is it considered the challenge, why it is being considered, as well as the challenges, like what kind of challenges are involved. Okay, so students, first of all, India has set an ambitious goal that we want to reach net net zero net zero carbon emission by 2070. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम पोल्यूशन लेवल को कम करेंगे काफी हद तक, एंड ग्रीन हाउस गैसेस स्पेशली जो इंडस्ट्री से निकल रही हैं, व्हीकल से निकल रही हैं. सो वन मेजर स्टेप टुवर्ड दिस इज स्विचिंग टू बायोफ्यूल्स. बायोफ्यूल्स बायोफ्यूल्स का मतलब क्या है? फ्यूल्स मेड फ्रॉम प्लांट्स इंस्टेड ऑफ पेट्रोलियम. ओके, तो सबसे कॉमन जो बायोफ्यूल है विच यू माइट हैव हर्ड इज एथेनॉल. एथेनॉल, राइट? एथेनॉल कैसे बनता है? एथेनॉल कैन बी मेड फ्रॉम शुगर केन जूस, मोलासिस. मोलासिस क्या होता है? जब शुगर बना दिया जाता है, उसके बाद एक थिक सिरप रह जाता है, उस सिरप से भी इथेनॉल बन सकता है. तो इथेनॉल को क्या किया जा रहा है? इथेनॉल को ब्लेंड किया जा रहा है पेट्रोल के साथ, एंड इंडिया हैज बीन यूजिंग ethanol petrol blends for many years now. But when scientists tried mixing ethanol with diesel, there was a problem. The two didn't mix well, and the blend wasn't stable. It could even evaporate over time. जैसे इवेपोरेट हो जा रहा था, और इवन बिल्कुल भी सेपरेट नहीं हो पा रहा, बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं हो पा रहा था. जैसे आपने कभी यू देखा होगा कि आप अगर वाटर के ऊपर ऑयल डाल देते हो, है ना, तो वो कैसे सेपरेट सेपरेट ही रहते हैं, राइट? सो वो वैसा ही हो जा रहा था जब एथेनॉल को डीजल के साथ मिक्स कर रहे थे, एंड दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन आवर व्हीकल्स, राइट? सो एथेनॉल ब्लेंडिंग विद डीजल वाज अनसक्सेसफुल. This created the need for a different biofuel, something that mixes better with diesel and performs well in engines. So, solution क्या निकला? Isobutanol. Isobutanol क्या है? Isobutanol, just like ethanol, it is also an alcohol, and इसका थोड़ा सा ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, और आपने कभी इसके बारे में पहले सुना भी नहीं होगा, लेकिन ये ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इन मेकिंग पेंट्स एंड केमिकल्स, isobutanol have been using. Now, what makes isobutanol special for fuel? Two things. First is it has yes. So first is it has higher flash point.
फ्लैश पॉइंट, इट हैज हायर फ्लैश पॉइंट। अब ये फ्लैश पॉइंट क्या है? देखो स्टूडेंट्स, जितना कम जो जो फ्लैश पॉइंट है, उसका मतलब है क्या है कि जितने लो टेम्परेचर पे एक लिक्विड वेपर देता है, दैट कैन कैच फायर। सो फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर at which a liquid gives off vapors that can catch fire. So diesel has a high flash point which makes it safer, है ना? मतलब कि हायर फ्लैश पॉइंट है, यानी कि इतनी जल्दी से इवेपोरेट, इतनी जल्दी से वो वेपर नहीं देता जिससे फायर कैच कर सके। इथेनॉल, वहीं दूसरी तरफ इथेनॉल का लो फ्लैश पॉइंट है, सो इट मेक्स इट riskier because it catches fire more easily. Isobutanol's flash point is closer to diesel, so this makes it safer to blend and store. Okay, अब इथेनॉल और डीजल ऊपर से आपस में मिक्स नहीं होते, बट आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंड्स स्मूथली विद डीजल, तो makes it a what makes it a better candidate for fuel. तो केमिकल पर्सपेक्टिव से देखिए तो आइसोब्यूटेनॉल ऑलरेडी लुक्स लाइक अ बेटर मैच फॉर डीजल एंड एथेनॉल। ऑलराइट, नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? देखो यहाँ पे एक और फैक्टर है, इंडिया के पास सरप्लस ऑफ एथेनॉल है, ठीक है। शुगर केन, आपको पता है शुगर केन इज ग्रोन वाइडली इन इंडिया, हमारे कंट्री में शुगर केन बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है, उसका प्रोडक्शन काफी है। एंड आफ्टर शुगर इज मेड देयर इज एक्स्ट्रा मोलासेस लेफ्ट बिहाइंड। आपको मैंने बताया था ना पहले, एक थिक सिरप होता है वो जो रह जाता है जब शुगर को बना लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो मोलासेस है, इट कैन बी यूज्ड टू मेक एथेनॉल, but in recent years India has been making more ethanol than it needs. So this extra ethanol can actually create problems like what? Like storage issue, falling prices for farmers. तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि same raw materials which used to make ethanol can also be used to make isobutanol. That means India can take its existing sugarcane and molasses supply and diversify. मतलब इथेनॉल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, साथ ही साथ आइसोब्यूटेनॉल भी। उससे क्या होगा? रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे, एंड दिस कुड हेल्प फार्मर्स टू। Currently, the government fixes a minimum support price for sugarcane to ensure farmers get fair payment. पर क्या होगा अगर sugar mills can also make isobutanol, so they have another product to sell, and this will make the entire system more profitable and stable. Okay? अब आइसोब्यूटेनॉल को बनाया कैसे जाता है स्टूडेंट्स? देखो, मतलब कि हम शुगर केन को एक फ्यूल लाइक केमिकल में कैसे बनाते हैं आइसोब्यूटेनॉल में। देखो प्रोसेस तो सेम है, जैसे एथेनॉल को बनाया जाता है वैसे ही आइसोब्यूटेनॉल को भी बनाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। नेचुरल शुगर्स, फर्स्ट इज फर्मेंटेशन। ओके, तो पहला प्रोसेस क्या है? फेर्मेंटेशन। फेर्मेंटेशन में क्या होता है? जैसे देखो देखो स्टूडेंट्स, नेचुरल शुगर फ्रॉम शुगर केन जूस और मोलासेस, दे आर फेड इनटू स्पेशल फर्मेंटेशन टैंक। एक टैंक होता है, उसमें इसको डाल दिया जाता है। यहाँ पे जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? शुगर को, कौन सी शुगर को? शुगर केन की, शुगर केन की शुगर को जो हमें मिला है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब स्पेशल प्रोसेस क्या है, ट्विस्ट क्या है? एथेनॉल के लिए हम यीस्ट, ईस्ट का यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा साइंस क्लास में ईस्ट के बारे में, राइट? ईस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। सो फॉर एथेनॉल रेगुलर ईस्ट इज यूज्ड, बट फॉर आइसोब्यूटेनॉल engineered microbes are needed, and these microbes are specially designed to produce isobutanol efficiently. ठीक है, तो
आइसोब्यूटेनॉल के लिए बेसिकली एक स्पेशल इंजीनियर माइक्रोब्स यूज करते हैं, ईस्ट नहीं करते, रेगुलर ईस्ट नहीं यूज नहीं करते। तो यहाँ पे डिफरेंस है। एंड आफ्टर fermentation द अल्कोहल मिक्सचर इज सेपरेटेड यूजिंग हीट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन। यस, डिस्टिलेशन, अगेन रिमेंबर साइंस क्लास। तो after fermentation distillation is used to separate alcohol from the mixture, and the plant can be adjusted to produce both ethanol and isobutanol in the same facility. Yes, तो सेम फैसिलिटी में इथेनॉल भी प्रोड्यूस हो रहा है, आइसोब्यूटेनॉल भी प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? तो ये तो अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, एक ही जो प्लांट है, a plant producing 150 kiloliters of alcohol per day could produce 125 kiloliters of ethanol and 20 kiloliters of isobutanol without major changes to infrastructure. तो इकोनॉमिकली वाइज तो ये फिजिबल है, देखो ना, क्योंकि सेम जो फैक्ट्री, सेम प्लांट एथेनॉल प्रोड्यूस कर रही है, वो ही सेम आइसोब्यूटेनॉल भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो अलग से कुछ प्लांट हमें चाहिए नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या है। What are the challenges and concerns? Okay, so first is diesel has something called cetane. Cetane, cetane number. Cetane number क्या है? मतलब कि ये कितनी जल्दी, how easily it ignites in an engine, कितनी जल्दी ये इंजन में इग्नाइट होता है। ठीक है, तब इग्नाइट होगा तभी तो ऑटोमोबाइल चलेगा, है ना? फ्यूल जो भी होता है वो पहले इग्नाइट होता है तभी चलती है गाड़ी। अब अगर हायर सीटेन नंबर है तो मतलब कंबशन जो प्रोसेस है वो स्मूथ होगा, इंजन परफॉर्मेंस बेटर होगा। ठीक है, तो आप ज्यादा डिटेल में समझने से बेटर है आप ये समझिए कि अगर हायर सीटेन नंबर होगा तो इंजन, गाड़ी का जो इंजन है वो स्मूथली चलेगा। ओके, इफ देयर इज अ हायर सीटेन नंबर इट मींस दैट इंजन परफॉर्मेंस विल बी बेटर, as simple as that. Now isobutanol has lower cetane number than diesel. आइसोब्यूटेनॉल का लोअर है सीटेन नंबर, तो दिस कैन लीड टू समथिंग कॉल्ड नॉकिंग। नॉकिंग मतलब व्हेन फ्यूल बर्न्स अनइवनली और एट द रॉन्ग टाइम इनसाइड द इंजन। तो नॉकिंग से क्या होता है? इट नॉट ओनली रिड्यूसेस पावर बट इट कैन ऑल्सो डैमेज द इंजन ओवर टाइम। इंजन डैमेज हो सकता है ओवर टाइम। ठीक है, तो ये दिक्कत है आइसोब्यूटेनॉल से। अब सोल्यूशन क्या है इसका? कि additives can be mixed into the blend to fix this issue, but they add extra cost and complexity. तो ये एक इशू है। Second is compatibility. Mixing two different substances is tricky. Isobutanol जो डीजल है, they need to form a homogeneous mixture, मतलब that they blend evenly and they stay mixed. So scientists are still testing to make sure that there won't be any separation. ठीक है, क्योंकि अगर हम फ्यूल जिससे बना है उसमें अगर है ना अलग अलग कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे तो दैट विल नॉट वर्क ना, राइट? सो दे वांट बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब जो ये पूरा ब्लेंड है, अच्छे से ब्लेंडेड है, दैट विल बी गुड फॉर व्हीकल। एंड इफ द ब्लेंड इज टू हाई, मोर देन 10% आइसोब्यूटेनॉल, ओके, मतलब ब्लेंड इज टू हाई का मतलब क्या है? जैसे उसकी क्वांटिटी, हम कितना आइसोब्यूटेनॉल यूज कर रहे हैं, कितना 10%, वी आर हाउ मच वी आर ब्लेंडिंग, 5% आइसोब्यूटेनॉल इज ब्लेंडेड विद biodiesel, or is it 10%? So if the blend is too high, अगर ज्यादा होगा, then अगर हम आइसोब्यूटेनॉल की क्वांटिटी को ज्यादा यूज कर रहे हैं डीजल में ब्लेंड करने के लिए, then it could harm the engine unless vehicles are designed to handle it. So this means vehicles might need slight modification before the fuel can be used safely, right? So what's next for this project? According to experts, blending experiments are still ongoing, है ना, अभी भी चल रहा है, और पायलट प्रोजेक्ट का जो ट्रायल है वो 18 मंथ्स में कंप्लीट होगा। तो इस टाइम पे साइंटिस्ट क्या टेस्ट करेंगे? हाउ वेल द ब्लेंड परफॉर्म्स इन डिफरेंट व्हीकल्स,
whether it causes engine problems or not. इसके बाद ही ये नेशन वाइड पे यूज किया जाएगा। अगर सक्सेसफुल रहा, मे बी साइंटिस्ट है ना, जो जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करेंगे, उसमें एडिटिव्स वगैरह जो भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन होगा वो करेंगे। ठीक है, अगर सक्सेसफुल हुआ तो ऑफ कोर्स इंडिया कुड सी isobutanol diesel blends becoming part of our fuel system. All right, so students, that's all for today. And if you like this episode, share it with your friends. I'll meet you in the next session. Till then, stay curious, stay informed. Bye bye.